Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's session, we are going to start a new chapter. Okay, the name of this chapter is Soil Erosion and Conservation. Okay, in this chapter, we are going to see how important soil for us. Okay, but due to some natural forces and as well as obviously artificial sources like we human beings, okay, we have creating a lot of pressure on our land, due to which the problem of soil erosion is increasing rapidly day by day. Okay, in this chapter we are also going to see what type of precautions we can take to stop soil erosion. Okay, so come with me and start the chapter. See, when you complete this chapter, then you can easily answer these three questions. Means, what is the soil, what are the various users of soil, and what can we do to make soil fertile. Okay, so come with me and let's see. So the first thing which we are going to start in this chapter is what is the meaning of soil. Soil क्या होता है, ठीक है? So come with me and let's see soil का क्या मतलब है. The top layer of the earth crust, okay, that consists of sufficient minerals and organic material to be richly inhabited by organism is called soil. So the topmost layer of our planet earth, okay, so the topmost layer of the earth land area which is rich of minerals and organic materials. Okay, the topmost layer of our land area. Okay, so the topmost layer which is spread throughout the land area, rich in minerals content, okay, rich in organism content. Okay, so that top layer is called as soil. Okay, now see, soil is mixture of, means soil is a combination, or soil is a mixture of minerals and organic constituent. Okay, so soil is made up of two things, mineral and organic constituent. Okay, and they are solid. Okay, they are in the form of solid, gas and aqueous states. Okay, so solid is a mixture of mineral and organic constituent which are present in the form of solid, gaseous and aqueous states. Okay, so this is all about our soil. Now we are going to see, my dear student, what is the meaning of soil erosion. Okay, what is the meaning of soil erosion? So come with me and let's see. सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं. The wearing away, detachment and transportation of soil from one place to another place and its deposition by moving water, blowing wind or other causes is called soil erosion. तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है आपके सॉइल इरोजन की. सॉइल इरोजन का क्या मतलब है? Here the picture is given. ठीक है, तो सॉइल इरोजन का मतलब है weaving away, detachment of the soil from one place to another place, okay, with the help of various transporting agents, like those transporting agents are our water, our blowing wind. Okay, so this is called as soil erosion. Soil erosion का क्या मतलब होता है? Here you can see in this picture, this is a picture of soil erosion. Okay, so soil erosion means when the topmost layer of the soil, okay, when the topmost layer of the soil carried away, okay, carried away in a large amount by the natural by the natural moving agents like moving water, moving air. Okay, when they carried away the topmost layer of the soil, that process is called as soil erosion. Okay, see, soil erosion is a natural process, okay, occurring over geological time, and indeed it is a process that is essential for soil formation in the first place. Okay, soil erosion by water is a widespread problem throughout. See, soil erosion कोई नई बात नहीं है आज के लिए कि आज मॉडर्न डे में soil erosion की प्रॉब्लम अचानक से बढ़ गई. नहीं, soil erosion की प्रॉब्लम जियोलॉजिकल टाइम से चली आ रही है. Now what is the meaning of, my dear student, geological time? See, our history, our planet earth, okay, our history of planet earth is divided into so many phases. Okay, and that phases are divided into time. That time is called as geological time. Okay, so
पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम से ही, स्टार्टिंग से इसका मतलब सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम रही है। और सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा वाटर से होता है, और आज के टाइम पे वाटर के थ्रू जितना भी सॉइल इरोजन होता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो सॉइल इरोजन हुआ है, ये यहाँ पे ये जितने भी व्हाइट व्हाइट पैचेस आपको दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है इन सब का? इन सब का मतलब ये है कि इट इज एन एरिया लोकेटेड नियर द river bank or maybe sea shore area, okay, but here, okay, all this area are eroded by water, okay, all this area are eroded by water, okay. So here the topmost layer of the topmost layer of the soil is eroded by water, okay. So this is the concept of soil erosion. I hope you got a very good understanding of soil erosion, okay. Now come with me, let's see what are the types of soil erosion we are going to see. देखो, the process of soil erosion involves, process of soil erosion का मतलब क्या होता है, इसमें क्या process होता है? अभी तो हमने पढ़ लिया कि soil erosion ही होता है, बट कैसे होता है वो? ये होता है आपके दो तरीकों से, ठीक है। जो soil erosion है उसका क्या मतलब है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो हट जाती है, तो वो दो तरीकों से होती है। वो कैसे होती है? दो तरीके से, देखो, एक तो है रेन ड्रॉप इम्पैक्ट एंड फ्लो ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेड आइदर बाय द साल्टेशन थ्रू द एयर और बाय द ओवरलैंड वाटर फ्लो, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है। द फर्स्ट वे इज रेन ड्रॉप इम्पैक्ट एंड द सेकेंड इज फ्लो ट्रांजैक्शन। रेन ड्रॉप इफेक्ट मीन्स वाटर, ओके, एंड फ्लो ट्रांजैक्शन मीन्स एयर, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि सॉइल इरोजन तो हो गया कि वाटर से और एयर से हो रहा है, तो वो बट वो जाता कहाँ है? ओके, दे कैरीड आउट और दे ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्टेशन थ्रू द एयर और बाय द ओवरलैंड वाटर प्रोसेस, ठीक है। सॉल्टेशन का प्रोसेस है जो कि विंड इरोजन से होता है, और आपका ओवरलैंड जो कि ओवरलैंड वाटर फ्लो जो कि वाटर इरोजन से होता है, ठीक है। तो किस प्रोसेस से सॉइल इरोजन होता है? टू वेज, रेन ड्रॉप इम्पैक्ट एंड फ्लो ट्रांजैक्शन, ठीक है। पर इनके विद इन भी कुछ और प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एयर के थ्रू सॉल्टेशन प्रोसेस के थ्रू होता है और वाटर के थ्रू ओवरलैंड की वजह से, ठीक है। Now we are going to see, my dear student, there are different types of soil erosion. See, here you can see there are the types of soil erosion. So the first type of soil erosion is normal or geologic erosion. Okay. So the second one is accelerated soil erosion. The third is your wind erosion. Fourth is your water erosion. Fifth is your landslide or slip erosion. Okay, and sixth is your stream bank erosion. Okay, so this is the 6 types of soil erosion. Okay, and now we are going to discuss all these 6 types of soil erosion in detail. So the first type of soil erosion is our normal or geologic erosion. Okay, what is the meaning of normal or geologic erosion? See, when parent rock and erosion by agencies like water and wind are processed. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट रॉक होती हैं, पेरेंट रॉक क्या है? पेरेंट रॉक का क्या मतलब है? वो रॉक्स जो कि बहुत टाइम से हैं, ठीक है, उनमें जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है आपका वाटर और विंड की वजह से, मतलब कंटिन्यूअस वाटर और विंड के कांटेक्ट में आने की वजह से जो रॉक के पोर्शन वो धीरे धीरे कट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल और जियोलॉजिकल सॉइल इरोजन, इसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वाटर अभी बस गया और पत्थर के दो टुकड़े हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट, मींस इट टेक्स अ thousands of years. Okay, that's why in normal and geological erosion it is very common, it takes thousands of years. Okay, there is always equilibrium between the removal and formation of soil, and harm is done when its equilibrium is disturbed by an outside agency. ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखिए जो ये नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन है, here you can see नॉर्मल एंड जियोलॉजिकल इरोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन में हजारों साल लगते हैं इस टाइप के इरोजन में, ठीक है। ये कंटिन्यूअस वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये सॉइल इरोजन यहाँ पे होता है, लेकिन ये हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन होता है ये हमेशा नॉर्मल, ये बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, सॉइल का डिपोजिशन कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन डिपोजिशन एंड इरोजन, ठीक है। बट ये डिफरेंस कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब ये जो डिफरेंस है ये कब इम्बैलेंस होता है? जब इसमें कोई आउटसाइडर एजेंसी इसमें इंटरफेयर करती है, जैसे कि हम ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन होता है, ठीक है। सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन रिमूवल एंड फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल।
नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन. एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एरियाज denuded to the natural protective cover, excessive grazing land that has been ploughed excessively result in the removal of top soil and thus accelerated soil erosion. Accelerated soil erosion का मतलब होता है excess grazing की वजह से या excess plugging की वजह से. मतलब ग्रेजिंग का क्या मतलब है? जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक काउ, बफालो, ऑक्सेस, ये क्या करते हैं? ये कंटिन्यूअस एक जगह का सारा घास खा गए, ठीक है, वो उस जगह पे कुछ बचा ही नहीं, ठीक है. तो जब वहां पे कुछ बचा ही नहीं, घास सब खत्म हो चुकी है, खा के वो खत्म कर चुके हैं, तो वो एरिया बैरन लैंड हो गया, ठीक है. तो जब हवा या एयर के थ्रू जब वहां पे इरोजन होगा तो क्या करेगा? जो सॉइल का टॉप मोस्ट एरिया है वो तो लेके चला जाएगा अपने साथ, ठीक है. तो ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन हुआ वहां पे. और साथ ही साथ एक्सेसिव प्लग्ड. अब देखो ये एक्सेसिव प्लग्ड होता है मतलब हम खेती करते हैं कंटिन्यूअसली, हम एक ही जगह पे खेती कर रहे हैं, उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी उस एरिया की कम हो जाती है, ठीक है. तो इससे क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल. जो टॉप सॉइल होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, और वो हमें सॉइल इरोजन मिलता है. हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन. सो द एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन मींस the soil erosion which is caused by due to the excessive grazing and due to the excessive plugging of the field. Okay, now the third type of soil erosion is erosion done by wind. Okay, wind erosions are mostly common in desert areas. Okay, here you can see this is a wind erosion example. Okay, wind erosion is the most common or predominant and dominantly found in desert areas. Okay, in wind erosion, strong wind mainly in hot and desert areas causes dust storms, forms sand dunes. ठीक है. So due to wind erosion which is predominantly happened in hot and desert areas, always remember my dear student, wind erosion always occurred in hot and desert areas. Okay, hot and desert areas. Okay, and when this wind erosion is done, it brings dust storms, forms sand dunes and buries localities with deposition of sand. Okay, and rendering fertile land. ठीक है. अच्छा, जब सॉइल इरोजन होता है ना तो उसमें जानते हो क्या होता है? हवा बहुत तेज चलती है, ठीक है. तो जब हवा बहुत तेज चलती है तो वो अपने साथ डेजर्ट एरिया की जो टॉप मोस्ट लेयर सॉइल होती है वो अपने साथ लेके चली जाती है, ठीक है. तो जब वो लेके जाती है तो इससे जानते हो क्या होता है? इससे तूफान आता है रेगिस्तान में. रेगिस्तानी तूफान, रेतीले तूफान, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डस्ट स्टॉर्म्स. ओके, तो क्या होता है जब विंड इरोजन होता है, ठीक है, इरोजन जब विंड के थ्रू होता है, जब सॉइल एक साथ इतने अमाउंट में उड़ती है तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा डेजर्ट में सैंड का तूफान आ गया है, ठीक है. तो वो जो सैंड होता है वो एक जगह से उड़ता है तो वो दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होता है. तो जब वो दूसरी जगह जाके डिपॉजिट होता है तो वो एक तरीके का स्ट्रक्चर एक बना देता है, ठीक है. वो एक स्ट्रक्चर बना देता है और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सैंड ड्यून्स, ठीक है. जैसे आप ये देख रहे हो, ये सैंड ड्यून्स हैं. दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर सैंड ड्यून्स, ठीक है. तो जो ये सैंड ड्यून्स हैं ये किससे बनते हैं? ये आपके विंड इरोजन की हेल्प से बनते हैं, ठीक है. बहुत लंबे टाइम से विंड इरोजन के थ्रू एक सैंड ड्यून्स ये बन जाते हैं आपके डेजर्ट एरियाज में, ठीक है. और जब ये कंटिन्यूअस विंड इरोजन होता रहता है, जो एरिया की फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है. तो और ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है? राजस्थान जैसे एरिया में, राजस्थान में है, ठीक है. उसके बाद जितने भी डेजर्ट एरियाज है हमारे वर्ल्ड के, वहां पे ये विंड इरोजन कॉमन होता है, ठीक है. नाउ आफ्टर विंड इरोजन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर इरोजन. ओके, वाटर इरोजन क्या होता है? देखो, वाटर इरोजन की वजह से, वाटर का मतलब ही बारिश होती है तभी इसमें, ठीक है. Rain comes down torrent, there is not enough time for the water to soak through soil and run off causes. अच्छा, जो वाटर इरोजन होता है ना ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड है. ये वाटर फ्लड की प्रॉब्लम पूरा देश देखता है, ठीक है. अच्छा, जब बारिश होती है बहुत जोरों की, ओके, व्हेन देयर इज अ हैवी रेनफॉल, ओके, सो द ग्राउंड वाटर, ओके, मींस द ग्राउंड, द लैंड एरिया कांट सोक, they can't soak all those raindrops because all of sudden a heavy rainfall started. Okay, when all of sudden a heavy rainfall started, the land area can't soak properly all the raindrops. Okay, and when those raindrops are not soaked properly by ground, then it causes water erosion. Okay, it means due to continuous rainfall and due to heavy rainfall, the top layer of the soil is eroded. Okay,
and it's transported from one place to another place with a natural agent named as water. Okay, and water erosion is also divided into many parts. Here we are going to discuss. So the first type of water erosion, so the first type of erosion caused by water is called as splash erosion. Splash erosion. Now what is the meaning of splash erosion? Erosion caused by torrential rain. ओके, स्प्लैश इरोजन का मतलब होता है जब अचानक से बहुत जोरों से बारिश होती है, ऑल ऑफ सडन, कोई टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, ऑल ऑफ सडन एकदम बारिश हो गई, और वो बारिश कहाँ पे होती है, ये 60 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो जब ये 60 टू 150 सेंटीमीटर तक बारिश होगी, इट मींस देयर इज अ हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो जब ये हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्राउंड है वो तो पानी सोख ही नहीं पाएगा, कितनी जोर से बारिश हो रही है, तो उसी बारिश में स्प्लैश इरोजन होता है, ठीक है। स्प्लैश का मतलब होता है हम अपने जब चेहरे पे पानी एक साथ डालते हैं, ठीक है, वी आर स्प्लैशिंग वाटर ऑन आवर फेस, ओके। सिमिलरली नेचर इज ऑल्सो स्प्लैशिंग अ हैवी रेनफॉल ऑन आवर फेस, ओके। तो क्या होता है उसमें ना, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो इरोड हो जाती है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है आपका स्प्लैश इरोजन, okay. Now the second type of erosion caused by water is sheet erosion. Now what is the meaning of sheet erosion? Sheet erosion means uniform removal of thin layer of sheet of soil. See, sheet erosion में क्या होता है, धीरे धीरे जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो रिमूव होती है, मतलब एक कांस्टेंट तरीके से रिमूव होती है, ठीक है। स्प्लैश में क्या होता है, एक साथ रिमूव हो जाती है, शीट में वो एक एक करके रिमूव होती है, ठीक है। Splashing, sloping land with shallow, loose topsoil overlying compact subsoil is the most susceptible. This type of erosion continuously makes the soil shallower and decreases crop yield. ठीक है। अच्छा, जो शीट इरोजन होता है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके इरोड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके जो फील्ड की फर्टिलिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके जो टॉप लेयर है ना सॉइल की वो तो खत्म होती जा रही है। जब सॉइल की टॉप लेयर जो कि न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी होती हैं, जब वही नहीं रहेंगी, सो माय डियर स्टूडेंट टेल मी द एरिया शुड रिमेन फर्टाइल? एब्सोल्युटली नो, ओके। तो शीट इरोजन ये होता है, ठीक है। अच्छा, शीट इरोजन में कलर भी चेंज होता है, जैसे पहले मडी कलर था, उसके बाद आपका क्या होगा, रन ऑफ फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। इसमें कलर कैसे चेंज होता है आप देख सकते हो कि पहले बहुत ग्रीनरी थी, अब वो क्या होता है, वो पूरे मड कलर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय वाटर इरोजन इज रिल इरोजन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिल इरोजन? सी, intermediary stage between sheet erosion and gully erosion. ठीक है, it involves a removal of soil by rain water runoff through small finger like channels. ठीक है, देखो जो स्प्लैश होता है उसमें एकदम ऑल ऑफ सडन रेनफॉल हो गया, शीट इरोजन में धीरे धीरे सॉइल हटता है, ठीक है। रिल इरोजन में क्या होता है कि ये शीट इरोजन और गली इरोजन, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, गली इरोजन, ठीक है। तो रिल इरोजन का मतलब होता है द इरोजन बिटवीन sheet erosion and gully erosion. So that erosion is called as rill erosion. Rill erosion में एक पतली सी लाइन बन जाती है, ठीक है, उसी लाइन में वाटर फ्लो होता है, ठीक है। जैसे सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ये देखो ये एक एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये इतना सॉइल है, इस एरिया में इस जगह पे सॉइल है, ठीक है। तो स्प्लैश इरोजन जब होगा तो सॉइल की ये जो क्या लेयर थी, जो टॉप लेयर है सॉइल की, ये क्या हो गई, ये अचानक से हट गई, स्प्लैश इरोजन में पूरी की पूरी हट गई, ठीक है। शीट इरोजन में क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, शीट इरोजन में ये धीरे धीरे करके हट रही है, देखो देखो शीट इरोजन में ये क्या कर रही है, स्प्लैश में तो ये अचानक से एकदम हट गई, ठीक है, शीट में ये धीरे धीरे करके हट रही है, ठीक है, देखो ये धीरे धीरे करके हट रही है। हाँ, रिल इरोजन का मतलब होता है जो शीट इरोजन और गली इरोजन के बीच का इरोजन होता है, उसको हम रिल इरोजन कहते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रेन वाटर रन ऑफ थ्रू स्मॉल फिंगर लाइक चैनल, ठीक है। तो जब ये कंटिन्यूअस ये रिमूव होता रहता है माय डियर स्टूडेंट, तो ये चैनल का फॉर्म ले लेता है। कैसे लेता है अब दिखाती हूं मैं तुम्हें, देखो ये ऐसे, देखो इरोजन होते होते इस एरिया में धीरे धीरे क्या होता है, जब कंटिन्यूअस इरोजन होता है तो ये एक ना पतली सी ऐसे चैनल बन जाती है, देखो, ठीक है।
ये इस तरीके से चैनल बन जाता है और इसी में ये हो रहा है इरोजन आपका, ठीक है। मतलब पानी क्या कर रहा है, पानी बह रहा है, अब पानी ने बहते बहते चैनल का रूप ले लिया है, ठीक है। स्प्लैश में अचानक से पूरा सब कुछ चला गया, शीट में धीरे धीरे जा रहा है, तो जब वो धीरे 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 कंटिन्यूअसली वो रिमूव होता रहता है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, it automatically takes the form of a finger like channel, okay, and the erosion which happens in this finger like channel is called as rill erosion, ठीक है। समझ में आया rill erosion का क्या मतलब है। Now we are going to discuss the channel और gully erosion, ठीक है। gully erosion occurs when the volume of concentrated runoff increases and attain more velocity, ठीक है। अच्छा, rill erosion में आप देख रहे हो कितनी पतली सी स्ट्रीम बनी हुई है, ठीक है। वहीं आपका channel और gully erosion में क्या होता है, देखो जो चैनल और गली इरोजन, इसमें क्या होता है, ये एरिया है, ठीक है। अब इरोजन होते होते जो वो रिल इरोजन का एरिया था वो बड़ा हो जाता है। जैसे पहले तो ये पतला सा था, अब क्या होता है, ये एरिया देखो ये इतना बड़ा, ये एक इतना बड़ा हो गया, कंटिन्यूअस इरोजन होते होते वो बड़ा होता चला गया, ठीक है। तो अब देख रहे हो ये इसने क्या कि गली का शेप ले लिया है, ठीक है, एक चैनल प्रॉपर बन गया, ठीक है। पहले जो इरोजन इतने छोटे से एरिया में हो रहा था वो कंटिन्यूअस इरोजन होते होते वो इतने बड़े एरिया में चला गया है, देखो ये, ठीक है। तो इसी को हम चैनल या गली इरोजन कहते हैं, ठीक है। चलो, द रिल एनलार्जेस इनटू गलीज, पहले वो स्प्लैश होता है, स्प्लैश इरोजन अचानक से पूरा हट गया, कुछ भी नहीं बचा वहां पे। शीट इरोजन धीरे धीरे करके होता है, ठीक है। तो वो धीरे 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 वो एक चैनल का रूप ले लेता है, उसको हम रिल इरोजन कहते हैं। वो रिल इरोजन में फिर इरोजन होते होते इट कन्वर्टेड इनटू गली इरोजन, ओके। सी द रिल इरोजन एनलार्जेस इनटू गलीज, ठीक है। ये इतने बड़े हो जाते हैं, हेयर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द गली इरोजन। ये इतना बड़ा हो जाता है कि इसमें से बुलक कार, ट्रक, कैटल, ट्रेल सब जा सकता है। ये इतना बड़ा इरोजन क्रिएट कर देता है कि इस क्रिएटेड एरिया में ना आप बैलगाड़ी, आप इवन एक छोटा सा ट्रक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द सॉइल इरोजन हैपेंड विद द हेल्प ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है। अब ये क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो, the pressure caused by the moisture going deep into the soil during heavy rain that is unable to penetrate further due to hard rock or soil strata below move a large mass of overlying soil. Such landslides are more common in hill areas. अच्छा, हिल एरियाज में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, मणिपुर में, नागालैंड में, ये सारे हिली एरियाज है हमारे। यहाँ पे लैंडस्लाइड की बड़ी प्रॉब्लम होती है। लैंडस्लाइड का क्या मतलब होता है, बारिश के टाइम पे ही लैंडस्लाइड होता है। क्यों, बारिश कंटिन्यूअस हो रही है, देयर इज अ कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल, ठीक है, एंड द ग्राउंड इज अनेबल टू सोक ऑल द raindrops, okay, they are unable to soak all the rain water. Why they are not unable, why they are unable to soak all the rain droplets, because due to the presence of hard rock, hard soil or rocky strata, okay, because see the top layer of the soil is very soft, okay, but beneath, whenever we go under the surface of the earth, we can find the hard soil, okay, because उसके नीचे क्या है, हार्ड सॉइल है, उसके नीचे पत्थर है, ठीक है। तो हार्ड सॉइल जो पत्थर क्या करते हैं, पानी को सोख नहीं पाते हैं। तो जब वो पानी को सोख नहीं पाते तो कंटिन्यूअस वो पानी जमा होता रहता है। तो वो पानी जमा होते होते वो एरिया क्या होता है, गीला हो जाता है, पूरा का पूरा मॉइस्चर से फुल हो जाता है। देन दैट मॉइस्चर कॉज्ड रिमूवल ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑल द डिपॉजिटेड एरिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उन पीसेस को खिसका देते हैं, मॉइस्चर की वजह से वो स्लिप कर जाता है। तो जो वो एरिया स्लिप होता है वही लैंडस्लाइड कहलाता है, ठीक है। चलो, स्ट्रीम बैंक इरोजन। अब ये स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या है, लेट्स हैव अ लुक। During a flood, the river carries large masses of soils, boulders and plants and deposit them downstream. देखो, जो ये स्ट्रीम बैंक इरोजन होता है, अभी हमने क्या देखा था, अचानक से बारिश हुई, सब खत्म हो गया, मतलब सारा टॉप लेयर चला गया। फिर शीट इरोजन हुआ, धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, वो धीरे धीरे इरोजन होते होते एक पतली सी चैनल बन गई, रिल इरोजन कहलाई। वही पतली सी चैनल अगेन इरोजन होते होते चौड़ी हो गई, जिसको हमने गली इरोजन का नाम दिया, ठीक है। बट वो गली इरोजन अचानक से और बड़ा हो जाता है, वो कब होता है, फ्लड के टाइम पे, ठीक है। During the time of flood, the river water carries, okay, the river water carries a large amount of soil and boulders, okay. जब फ्लड आता है तो रिवर क्या करता है, अपने साथ जो उसके रास्ते में आता है वो सबको बहा ले जाता है,
तो जब वो सबको बहाती हुई ले जाती है तो उन सबको एक जगह ले जाके वो डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कंटी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार है, अगर वो बहती चली गई तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट कार विल डिपॉजिट एट सम अदर प्लेस। ठीक है, बाढ़ में क्या होता है, नदियां जब बहती हैं अपने एकदम अपने पूरे के पूरे वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, वो अपने सामने जो भी आता है ना उसको सबको बहाते हुए ले जाती हैं, लेकिन वो सारी बहती हुई चीजें कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, the deposit reduces the transporting capacity of the torrent, resulting in overflow and meandering of the river and erosion of the river bank. ठीक है, अच्छा, जब वो सारे के सारे चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं एक जगह जाके, तो उसमें क्या होता है, वो तो डिपॉजिट हो गई और वो वहीं रहेंगी अब, बट अचानक से फिर से बारिश हुई। ठीक है, फिर से बारिश हुई, तब क्या हुआ, वो तो एक तरीके का बैरियर का काम करेंगी ना वाटर के फ्लो में। ठीक है, तो उस बैरियर को तोड़ते हुए, ठीक है, उस बैरियर को तोड़ते हुए रिवर अपना कोर्स चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो वही कहलाता है आपका स्ट्रीम बैंक इरोजन। ठीक है, वही आपका स्ट्रीम बैंक इरोजन कहलाता है। नाउ द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब है, अभी तक हमने पूरा का पूरा इरोजन देखा कि कैसे टॉप लेयर सॉइल की खत्म हो रही है। नाउ वी हैव टू कंजर्व दैट टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप इस तरीके से कर सकते हो, फर्टिलिटी आप लोग बढ़ाइए क्रॉप्स की। ठीक है, और वो कैसे बढ़ेंगी, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सॉइल मैनेजमेंट एंड लैंड यूज मेथड्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किए हुए हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, जिसके अंडर में सॉइल मैनेजमेंट हमें बताया जाता है हमारे फार्मर्स को। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से आप अपने लैंड एरिया को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो बिना वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे सॉइल कंजर्वेशन में हमें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप, सॉइल कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने टॉप लेयर सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का वो है कंटूर प्लॉगिंग। कंटूर प्लॉगिंग स्पेशली आपके हिल एरियाज में किए जाते हैं। अच्छा, कंटूर प्लॉगिंग का क्या मतलब है, ये देख सकते हो, देयर इज एन हिली एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखो इस तरीके से किए गए हैं। हाँ, ये देखो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लो। ठीक है, कॉन्टूर प्लॉगिंग का मतलब होता है कि इस शेप में यहाँ पे फार्मिंग की जाती है और जो एरिया इनके बीच में है ना, इस एरिया से ही वो पानी चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे क्रॉप्स भी खराब नहीं होंगे और हमारा एरिया भी प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो कॉन्टूर प्लॉगिंग में देखिए जो एरियाज बीच में ब्लू कलर में है, यहीं से वो पानी जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाता है। ठीक है, तो कॉन्टूर प्लॉगिंग स्लोपी एरियाज में बहुत हेल्पफुल होता है। द सेकेंड मेथड थ्रू विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल इज नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो न्यू सीड्स हम जो फार्मर्स हमारे रोपते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो पुराना एरिया होता है, जहाँ पे पुरानी फसल होती है, उसको कंप्लीटली नहीं हटाते हैं। ठीक है, उसको कट करने के बाद जो अंडरग्राउंड में रहता है वो वहीं पर न्यू सीड को उगाने की कोशिश करते हैं वहीं पे। ठीक है, तो टिल फार्मिंग का मतलब यही है। टिल फार्मिंग बेसिकली आपका प्लेन एरियाज में किया जाता है। ठीक है, फिर कंजर्वेशन टिलेज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सॉइल प्रिपरेशन, प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन दैट डिस्टर्ब द सॉइल द लीस्ट। इसमें क्या होता है कि सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए इस तरीके से फार्मिंग की जाती है कि जो लैंड एरिया जो हमारे पास बचा हुआ है, जो फर्टाइल लैंड एरिया बचा हुआ है, उसकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसमें क्या है, अच्छा, ये टिल फार्मिंग में क्या था कि पुराना वाला हटाते नहीं है कंप्लीटली, नया वहीं लगा देते हैं। टिल में क्या करते हैं, हटाते हैं लेकिन केयरफुली हटाते हैं, जिससे जो आसपास की एरिया है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये कैसे होगा, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके वजह से टिलेज कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका टेरेस फार्मिंग। नाम से ही पता चल रहा है सीढ़ियां। ठीक है, सीढ़ियां, तो टेरेस फार्मिंग हमारे हिल एरियाज में बहुत ही कॉमन है। ठीक है, टेरेस में क्या होता है कि यहाँ पे पहाड़ों को कट किया जाता है, मीन्स पहाड़ों को कट करके टेरेस का शेप दिया जाता है और वहां पे फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन आपका रुकेगा। जैसे देखो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, यहाँ पे आपकी फार्मिंग हो रही है, लेकिन ये जगह भी तो यहाँ पे खाली है जहां से वाटर फ्लो कर सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारी फार्मिंग भी हो गई, हमारी लैंड भी बच गए। ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, ये कहां पे होता है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज पे टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है, प्लांटिंग और डिफरेंट क्रॉप्स इन गिवन फील्ड एवरी ईयर। ठीक है,
क्रॉप रोटेशन मेथड से भी आप सॉइल कंजर्व कर सकते हो। कैसे? जैसे आप इस साल चावल वहां पे लगाइए, अगले साल आप कोई और फसल वहां पे बोइए, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर आप चावल की खेती करते रहोगे एक ही एरिया में, तो वहां पे फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो जब फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी तो वो एरिया हमारे किसी यूज का नहीं रह जाएगा। इसीलिए क्रॉप रोटेशन भी हमें करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है कि डिफरेंट क्रॉप्स इन अ गिवन फील्ड एवरी ईयर। ठीक है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में हर साल लगाना चाहिए। फिर स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है? स्ट्रिप फार्मिंग आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे जो बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, बड़े बड़े जो फार्मिंग फील्ड्स होते हैं, ये स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ग्रास की जो स्ट्रिप होती है वो दो क्रॉप्स के बीच में उगाई जाती है। जैसे ये देखो, स्ट्रिप फार्मिंग आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का मतलब क्या है? ये ग्रास की बेल्ट है। ठीक है, ये जो ग्रास की बेल्ट आप देख रहे हो, ये सब कहाँ उगाई गई है? दो क्रॉप्स के बीच में। ठीक है, जो ये क्रॉप्स टेरेस स्ट्रिप फार्मिंग में हो रही है, ये देखो, ये जो येलो कलर का है ना, ये सारा का सारा आपका क्रॉप है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, बीच में ग्रासलैंड छोड़ी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? ग्रासेस छोड़े जाते हैं। तो ये ग्रासेस है तो उसका क्या मतलब है? यहाँ की फर्टिलिटी भी तो बनी रहेगी। तो इसीलिए स्ट्रिप फार्मिंग आजकल हमारे इंडिया में वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन हो रहा है। फिर शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट का क्या मतलब होता है? शेल्टर बेल्ट के थ्रू भी हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर। आप एक लाइन में ट्रीज को लगाते जाइए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ ट्री लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ नहीं, एक लाइन में आप ट्रीज को लगाते जाइए। तो जब आप एक लाइन में ट्रीज को लगाते जाएंगे ना, इट टुक द शेप ऑफ अ शेल्टर। ठीक है, रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। तो वो जो सारे रोज होते हैं ना, जहां पे आपने ट्रीज लगाए हैं, उनको कहा जाता है शेल्टर बेल्ट। ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट की हेल्प से भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। दिस शेल्टर बेल्ट contributed significantly to the stabilization of sand dunes and stabilizing the desert in western India। ठीक है, ये बेसिकली शेल्टर बेल्ट हमारे डेजर्ट के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीकों से हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। सो कम विद मी माय डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। हमने क्या पढ़ा? हमने सॉइल को पढ़ा। सॉइल क्या होता है? मिक्सचर है मिनरल और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, जो कि आपके बहुत सारे फॉर्म में होता है, सॉलिड में, गैसियस में और एक्वेशियस स्टेट में होता है। सो दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। नाउ, अच्छा, सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो ऊपर की लेयर है, टॉप लेयर है, वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल बनता कैसे है? सॉइल बनता है आपके पेरेंट रॉक के वेदरिंग से और मिनरल से। ठीक है, फिर बनता है सॉइल। कितने टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं? पहला आपका नॉर्मल सॉइल इरोजन होता है, फिर एसिलरेटेड सॉइल इरोजन है, विंड इरोजन है, वाटर इरोजन है, लैंडस्लाइड है और स्ट्रीम बैंक इरोजन है। ठीक है, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि आप जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है, जो फर्टाइल होती है, ठीक है, आप उसको किस तरीके से बचा सकते हो? विंड और वाटर इरोजन के थ्रू। ठीक है, और कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं? तो हम क्रॉप्स को कवर कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कंटूर फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट यू ऑल गॉट अ वेरी गुड glimpses of this chapter. Okay, now go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Okay, now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new video. Till then, take very good care of yourself. Bye.